नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की एक बड़ी जीत हुई है। भारत को ये कूटनीतिक जीत मालदीव में चल रहे चौथे एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन में मिली है। दरअसल पाकिस्तान ने सम्मेलन में कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। सम्मेलन में मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का हवाला देकर कश्मीर मुद्दा उठाने नहीं दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 370 से जुड़ा मामला भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश है और पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से पीओके पर कब्जा किया है। तो अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। राज्यसभा के उपसभापति ने पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाने दिया है। उनका साफ कहना है कि कश्मीर का मुद्दा भारत का आंतरिक मसला है। चौथे एशियाई शिखर सम्मेलन में एक बार फिर से पाक की शिकस्त हुई है। अनुच्छेद 370 को लेकर यह शिकस्त पाकिस्तान को खानी पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की एक बड़ी जीत हुई है। तो भारत को यह कूटनीतिक जीत मालदीव में चल रहे चौथे एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन में मिली है। सबको बिलखुसूस ख्वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत करने में नाकाम रही है, तो वो अपने अवाम की सही नुमाइंदगी का दावा नहीं कर सकती। अगर हम पुरअमन और जमहूरी एशिया की तामीर चाहते हैं, तो फ़लस्तीनियों, रोहिंग्या के मुसलमानों और ज़ुल्म और सितम का शिकार कश्मीरियों की हालत इज़्ज़ार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी बरादरी को जारियत और तशद्दुद का निशाना बनने वाले इन अफराद के खिलाफ नाइंसाफियों का इज़ाला करना होगा। हमारी पार्लियामेंट दुनिया के ऐसे पिसे हुए तमाम लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए इनके साथ The Deputy Speaker of Pakistan, there is an order, point of order. Can we please hear the point of order? कश्मीर के तनाज़े को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में Just one moment, Deputy Speaker. Deputy Speaker, point of order. Just in, पाकिस्तान की पॉलिसी के एक अहम सतून इलाकाई यकजहती और the deputy, please. पॉलिसी का अहम the Deputy Speaker, point of order, please. Please, just 1 minute, Deputy Just 1 Speaker. minute, please. There is a Point point of of order. order. There's a point of order. Let's listen to the point Just of order. hold on 1 minute. Just Okay, 1 minute. one speaker after the other. The Indian speaker has asked for a point of order, and I am going to allow a point of order for the Indian speaker. Thank you, Excellency. This point of order relates to the statement given by here. Excellency, we strongly object to the raising of internal matter of India in this forum. We also reject the politicization of this forum by raising issues which are extraneous to the theme of this summit. There is need for Pakistan to end cross-border terrorism and all kinds of state support to the same in the interest of regional peace and stability. Excellencies, terrorism is the biggest threat for entire humanity and the world today. Therefore, unanimously we should not allow in this August gathering any kind of written view to become part of the proceeding. Again, sir, Excellency Speaker, Mohammad Nasir Sahab, Maldiv Majlis, and Excellency and Secretary General IPU, Mr. Martin, yours repeatedly and categorical statement that this forum or summit is only meant to discuss SDG, this should not be the part of proceedings, sir. I strongly object to be deleted this part. Thank you, Excellency. I also have a point of order from the Pakistani Senate. Thank you, Excellency. SDGs, all of them, be they about women, about youth, for sustainable development, for food security, nothing can be achieved without human rights. If you have no people to implement SDGs on, who are you going to implement sustainable development goals for? Just land?
the atrocities being meted out in Kashmir on the women. no, Let me no, complete. no, They my- are related no, directly to Senator. SDGs. No, But Senator. they are related You may- directly to you- SDGs, Excellency. No, Senator. They are directly related to SDGs. Point of order, Senator. Here's my point of order. Yes, They are- yes, I think So yes, then please allow the Honourable yes. Speaker to finish his speech. Deputy Speaker, can you Thank finish you. your speech Thank from you. where you had left? Thank you. सबको बिलखुसूस ख्वातीन पाकिस्तान की पॉलिसी के एक अहम सतून इलाकाई यकजहती और the deputy- करनी है। Please, इस please, पॉलिसी का अहम The Deputy Speaker, point of order, please. please, just 1 minute, Deputy Just 1 Speaker. minute, please. There is a Point of point of order. order. There's a point of order. Let's listen to the point Just of order. hold on 1 minute. Just Okay, 1 minute. one speaker after the other. The Indian speaker has asked for a point of order, and I am going to allow a point of order for the Indian speaker. Thank you, Your Excellency. This point of order relates to the statement given by here. Excellency, we strongly object to the raising of internal matter of India in this forum. We also reject the politicization of this forum by raising issues which are extraneous to the theme of this summit. There is need for Pakistan to end cross-border terrorism and all kinds of state support to the same in the interest of regional peace and stability. Excellencies, terrorism is the biggest threat for entire humanity and the world today. Therefore, unanimously we should not allow in this August gathering any kind of written view to become part of the proceeding. Again, Sir, Excellency Speaker, Mohammad Nasir Sahab, Maldiv Majlis, and Excellency and Secretary General IPU, Mr. Martin, yours repeatedly and categorical statement that this forum or summit is only meant to discuss SDG, this should not be the part of proceedings, sir. I strongly object to be deleted this part. और इस वक्त राज्यसभा के महासचिव अखिलेश दीपक वर्मा जी हमारे साथ देश दीपक वर्मा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। देश दीपक वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज्यसभा टीवी में। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे। भारत के लिहाज से देखें तो कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत यहां पर भारत की हुई है? मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक विजय भारत के लिए रही जी, क्योंकि ये बहुत पहले से ये अंदाजा हो रहा था कि पाकिस्तान बिना कारण और सब विषय से कनेक्टेड न होने के बावजूद they might raise this issue. So we had in fact founded also the chair of the session, which is the speaker of the Maldives. और उसके बाद भी पाकिस्तान ने जबरदस्ती उसको उठाने की कोशिश की और हमारे स्पीकर और हमारे ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के द्वारा उसको बहुत ही इफेक्टिव ढंग से काउंटर किया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि चेयर ने अपने सीट से ये आर्डर किया कि इस तरह का विषय जो सब्जेक्ट से कनेक्टेड नहीं है वो नहीं उठाया जा सकता। और जिस तरह से मेंबर्स का भी रिस्पांस था, मैं समझता हूँ जो और कंट्रीज के डेलीगेट थे, उससे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान को इस विषय को उठाने का जो प्रयास है, उससे एक उनको बड़ा झटका लगा है इस प्रयास में। सर, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा उपसभापति सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मुद्दा उन्होंने किस तरह से उठाया? आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे। किस तरह से पाकिस्तान की कोशिश को यहां पर भारत की तरफ से नाकामयाब किया गया? जैसे ही पाकिस्तान ने ये मुद्दा को अपने विषय में किसी तरह से खींचतान करके लाने की कोशिश की गई, तो तुरंत हमारे डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर दोनों खड़े हो गए और डिप्टी चेयरमैन ने बोला और कहा इस बात को कि ये विषय जो हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं, जो इस 4th साउथ एशियन स्पीकर समिट का विषय है, ये इससे एकदम हटकर ये बिंदु उठाया जा रहा है। और इस सम्मेलन में चूंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से हट करके
किसी भी कंट्री का आंतरिक मामला वो यहाँ नहीं उठाया जा सकता। तो इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को जो हम चेयर से, जो कि मालदीव के स्पीकर हैं जी मोहम्मद नसीम, ऑनरेबल मोहम्मद नसीम, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने इसी तरह के निर्देश भी पाकिस्तान के स्पीकर को दिए। सर वही मालदीव की हम बात करें तो अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर मालदीव ने भी भारत का समर्थन किया है। यहाँ तक कि मालदीव के स्पीकर ने भरोसा भी दिलाया है कि कश्मीर पर दिए गए बयानों को रिकॉर्ड से भी हटा दिया जाएगा। कितनी बड़ी जीत आप इसे देखते हैं और कितनी बड़ी हार के तौर पर इसे देखा जाए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हर बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है। हाँ बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनको मुँह की खानी पड़ती है और आगे भी पड़ेगी। इस बात का पूरा प्रदर्शन आज के इस कॉन्फ्रेंस में हुआ और पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है ये आगे के लिए एक सीख है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वो इस मुद्दे को, जो कि विषय से संबंधित नहीं है, उसको नहीं उठा सकते। साथ ही साथ सर भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अनुच्छेद 370 से जुड़ा मामला भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को एक बार फिर से निशाने पर लिया है कि आतंक का पनाहगार बना हुआ है पाकिस्तान और आतंकी वहां पर पनपते हैं और ऐसे में पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से पीओके पर कब्जा भी किया है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात ये भी कही उन्होंने कि इस तरह का जो मुद्दा उठाने की पाकिस्तान द्वारा कोशिश की जा रही है उसमें खुद उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और इसलिए उनको किसी तरह से इस मुद्दे को उठाने का ना तो मौलिक ना तो कोई भी मॉरल अधिकार है, नैतिक अधिकार है, और ना ही उनका कोई राजनीतिक इस पे कोई उनको सपोर्ट मिल सकता है अंतर्राष्ट्रीय वर्ग से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं अखिलेश सुमन का। अखिलेश जी, भारत को कितनी बड़ी जीत के तौर पर आप इसे देखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, कूटनीतिक जीत यहाँ पर भारत की हुई है। मालदीव में चल रहे चौथे एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन में ये जीत हासिल हुई है भारत को। देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने लगातार धारा 370 हटाने के बाद पूरी दुनिया में एक तरीके से मुहिम छिड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल भारत का आंतरिक मामला है। और ऐसी स्थिति में जब बात ये होनी थी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में, जिसमें इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर मार्टिन भी मौजूद थे, तो सिर्फ एक महज दक्षिण एशियाई देशों का नहीं था, एक तरीके हम कहें कि पूरी दुनिया के जो स्पीकर्स के प्रतिनिधि थे उनका पार्टिसिपेशन था। और ऐसे में डिस्कस ये होना था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सभी देशों के लिए एक पैमाना तय किया गया है कि इतना आपको विकसित करना है अपने देश में, उस पर चर्चा होनी थी। और उस चर्चा होने के बीच में पाकिस्तान के प्रतिनिधि जो डिप्टी स्पीकर हैं, दरअसल उनका नाम है मिस्टर कासिम खान सूरी ने अचानक ये मामला उठाना शुरू किया जब उनकी बारी आई कि कश्मीर में धारा अनुच्छेद 370 और ये सारी बातें उठानी शुरू की, मानवाधिकार के हनन। और जो मुझे सूचना मिली है कि भारत को इस बात का अंदेशा था कि पाकिस्तान की जब बारी आएगी तो पाकिस्तान इस मामले को उठाएगा, इसीलिए पहले से विदेश मंत्रालय ने तैयारी कर ली थी। विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी वहां मौजूद थे। जो स्पीकर है हमारे लोकसभा के ओम बिरला जी और हमारे जो डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश जी, वो भी मौजूद थे। और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया कश्मीर के मसले पे, वैसे ही भारत की तरफ से हस्तक्षेप की बात की गई। और जो हरिवंश जी हैं डिप्टी चेयरमैन, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बीच में भी लगातार मिस्टर कासिम बोलते रहे। इस बीच में जो मोहम्मद नासीद हैं, जो वहाँ के स्पीकर हैं, जो मालदीव की मजलिस है उसके स्पीकर हैं, उनकी अध्यक्षता और मिस्टर मार्टिन IPU के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन दोनों की संयुक्त अध्यक्षता में हो रही थी। उन्होंने
उन्होंने बार बार हस्तक्षेप किया और अंत में जब हरिवंश जी को मौका मिला तो उन्होंने तकरीबन कहें कि वो पाकिस्तान को आईना दिखा दिया कि क्या है पाकिस्तान और किस तरह से अनुच्छेद 370 के मामले पे वो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि उनका खुद का इतिहास इतना गंदा रहा है। और उन्हें इस बात का भी उदाहरण दिया कि किस तरीके से मानवाधिकार के उल्लंघन की वजह से पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटकर अलग हुआ। तो यह इतिहास पाकिस्तान को और पूरी दुनिया और सार्क देशों के प्रतिनिधियों के सामने याद दिला दिया गया कि आपके सामने एक जीती जागती मिसाल है कि आपके मानवाधिकार हनन की वजह से बांग्लादेश आपसे अलग हुआ। उसके अलावा जो उन्होंने बात बताई जो आतंकवाद का मामला है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लगातार भारत के खिलाफ करता रहा है और भारत जो लगातार इस बात की मांग करता रहा है कि कश्मीर मामले पे बातचीत की हमेशा तभी होगी जबकि आप आतंकवाद बंद करेंगे। और कश्मीर मामला भारत का अंदरूनी मामला है और भारत के अंदरूनी मामले में पाकिस्तान जो बार बार बयानबाजी कर रहा है यह दरअसल भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप है। और सार्क के चार्टर में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी देश के बायलैटरल इश्यूज डिस्कस नहीं होंगे सार्क के मंच से और किसी भी देश के अंदरूनी मामले को सार्क के मंच पर नहीं उठाया जाएगा। और इस बात को कहते हुए हरिवंश जी ने इस बात के लिए कही कि जो उन्होंने बात कही है उस पूरी बात को रिकॉर्ड से हटाया जाए। मतलब जो पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर ने जो बात कही है कश्मीर के मामले पे उसके पूरे जो सार्क स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस है उसके रिकॉर्ड से हटाया जाए। और अंत में जब जो अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद नसीद और मिस्टर मार्टिन उन्होंने ये निर्देश दिया कि जो कश्मीर पे पाकिस्तान की बात है उसको पूरे रिकॉर्ड से हटाया गया। तो निश्चित तौर पे भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। और जिस तरीके से सार्क में पूरी तरह पाकिस्तान अपने आप जो आतंकवादी घटनाएं की भारत के खिलाफ उसके बाद भारत ने कहा कि हम इस सार्क शिखर सम्मेलन में तब तक भाग नहीं लेंगे जब पाकिस्तान आतंकवादी घटनाओं को नहीं रोकता है, सीमा पार आतंकवाद को रोकने की पूरी प्रतिज्ञा नहीं करता है। और यह दिखने वाली बात होनी चाहिए किस तरीके से वो आतंकवाद रोक रहे हैं, महज वादों से नहीं बल्कि सतह पे धरातल पे दिखना चाहिए, तभी सार्क लेता है या फिर नहीं लेता है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अखिलेश जी पाकिस्तान पहले ही अलग थलग पड़ा हुआ है और एक बार फिर से जब सम्मेलन में उसने अनुच्छेद 370 को लेकर कश्मीर का मुद्दा उठाना चाहा तो वहां पर मौजूद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का हवाला दिया और कश्मीर का मुद्दा उठाने ही नहीं दिया। निश्चित तौर पे उन्होंने जो पहले जो 2-3 वाक्य बोले उस वाक्य के बोलने के बीच में ही भारत, चूंकि मैंने जैसा कि पहले बताया कि भारत को इस बात का अंदेशा था कि पाकिस्तान ऐसी हरकत कर सकता है, एजेंडा के विपरीत जाकर उनका जो अपना एजेंडा अभी चल रहा है उस एजेंडे पे वो बोलेंगे। इसलिए तत्काल हरिवंश जी ने उठकर हस्तक्षेप की मांग की और उन्होंने एक जो टेक्स्ट पहले से तैयार था इस बारे में तो उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के टेक्स्ट को पढ़ा। तो इस तरीके से कहे कि जो पाकिस्तान का पूरा बयान आता उस पूरे बयान को ही आपने कहे कि डिमोलिश कर दिया गया। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। वो पूरी और बात यहाँ पर अखिलेश जी एक बार फिर से सुन लेते हैं कि चौथे एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन में क्या कुछ हुआ जब पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला उठाया। कश्मीरियों की हालत इज़्ज़ार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी बरादरी को जारियत और तशद्दुद का निशाना बनने वाले The deputy speaker, point of order, please. Please, just 1 minute. Deputy Just 1 Speaker. minute, please. There is Point a point of of order. order. There's a point of order. Let's listen to the point Just of order. hold on 1 minute. Just Okay, 1 minute. one speaker after the other. The Indian speaker has asked for a point of order, and I am going to allow a point of order for the Indian speaker. Thank you, Your Excellency. This point of order relates to the statement given by here. Excellency, we strongly object to the raising of internal matter of India in this forum. We also reject the politicization of this forum by raising issues which are extraneous to the theme of this summit. There is need for Pakistan to end cross-border terrorism and all kinds of state support to the same in the interest of regional peace and stability. Excellencies, terrorism is the biggest threat for entire humanity and the world today. Therefore, unanimously we should not allow in this August gathering any kind of written view to become part of the proceeding. Again, sir, Excellency Speaker, Mohammad Nasir Sahab, Maldiv Majlis, and Excellency and Secretary General IPU, Mr. Martin, yours repeatedly and categorical statement
that this forum or summit is only meant to discuss SDG. This should not be the part of proceedings, sir. I strongly object to be deleted this part. Thank you, Excellency. और अखिलेश सुमन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं अखिलेश सुमन का। अखिलेश जी, एक तरफ तो एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, कश्मीर का मुद्दा उठाने का मौका यहां पर नहीं दिया है भारत ने, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है, उसका कहीं ना कहीं जवाब देने भी यहां पर भारत की तरफ से दिया गया है। साफ कहा गया है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश है और पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से पीओके पर कब्जा किया हुआ है। निश्चित तौर पे जो हरिवंश जी का बयान था पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत, उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर में साफ साफ उन्होंने जिक्र किया आज़ाद कश्मीर जिसे पाकिस्तान कहता है और जिसे गिलगित बाल्तिस्तान कहता है। उन्होंने जो पीओके है, पीओके के दो भागों में विभाजित कर रखा है, जिसमें कि एक को आज़ाद कश्मीर कहते हैं, दूसरे को गिलगित बाल्तिस्तान कहते हैं। लेकिन जो सबसे जो कहें कि हास्यास्पद बात है कि उन दोनों प्रदेशों में उन्होंने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम दे रखा है। अब मुश्किल ये है कि वो एक, अब मैं बताऊं आपको कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक अधिकारी इस्लामाबाद से, एक कश्मीर अफेयर्स का जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी इन दोनों प्रदेशों जो गिलगित बाल्तिस्तान और एजे के का प्रशासन देखता है। और ये जो है दोनों जो तथाकथित प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो ट्यूटलर हेड कहे जाते हैं। और इसलिए भारत ने लगातार ये बोला है कि वो तो ना देश के रूप में है और न ही वो एक राज्य के रूप में है। पाकिस्तान ने उसकी हालत बिल्कुल विचित्र बना रखी है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और ये इसलिए है कि वो दरअसल भारत जो जम्मू कश्मीर की बात करता है, उस जम्मू कश्मीर का ही वो पार्ट है जो जिसे वो पीओके कहते हैं। भारत लगातार इस बात को करता रहा है और इस बार खास तौर पे जोर देकर कहा गया है कि अब आगे जो बातचीत होगी वो पीओके पर बातचीत होगी जो कि भारत का हिस्सा है। तो निश्चित तौर पे आज पिछले आप देख रहे हैं कि 70 सालों से लगातार भारत की तरफ से ये कोशिशें हुई कि पाकिस्तान के साथ एक ऐसा संबंध विकसित किया जाए जो एक अच्छे पड़ोसी का संबंध हो। दोनों देशों को गरीबी बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है, दोनों देश मिलकर लड़ें। लेकिन पाकिस्तान इस बात के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान को इस बात की कभी सुध नहीं रही कि उनके देश की जनता को क्या चाहिए। शांति चाहिए, विकास चाहिए कि उनके देश की जनता को केवल आतंकवादी की भर्ती चाहिए। निश्चित तौर पे पाकिस्तान लगातार यही करता रहा और अभी जब स्थितियां ऐसी हो गई कि पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कोशिशें की। वे खुद लाहौर भी गए एक बार अचानक यह दर्शाने के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक दोस्ताना रवैया के बारे में सोचा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी लगातार भारत के कई सैन्य ठिकानों पर भी हमले होते रहे। तब अंत में निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर की जनता के जो बेहतर हित में है वो ये है कि अनुच्छेद 370 जिसका बहाना लेकर पाकिस्तान उस हिस्से में आतंकवाद फैलाता है, उसे खत्म करके भारत की मुख्य धारा से पूरी तरह से जोड़ा जाए ताकि वहाँ विकास का कार्य शुरू हो और वहाँ शांति की प्रक्रिया चले, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को यह महसूस करें हो सके कि वे भारत के अविभाज्य अंग हैं। और इसी प्रक्रिया में ये बात हुई है। और लेकिन पाकिस्तान जिसको कि हमेशा एक एजेंडा चाहिए भारत के खिलाफ, उसी एजेंडे के तहत जैसे ही ये धारा अनुच्छेद को खत्म करने की बात हुई, उन्होंने पूरी दुनिया में माहौल बनाने की कोशिश की और चीन के सहयोग से उन्होंने सुरक्षा परिषद में भी इस बात को उठाने की कोशिश की। लेकिन जो नतीजा आया सामने वो काफ़ी उनके लिए खुद दुखद था, क्योंकि किसी भी सुरक्षा परिषद के सदस्य ने उन्हें सपोर्ट करने से मना कर दिया। चीन के अलावा जो 15 सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, उसमें से सिर्फ एक चीन उनके साथ रहा। वह भी पूरी तरह नहीं वो करवा सका, कोई बयान नहीं दिलवा सका सुरक्षा परिषद से। तो उनको लगातार मुंह की खानी पड़ रही है पूरी दुनिया में। उन्होंने फ्रांस से सहयोग की मांग की, फ्रांस ने मना कर दिया। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, सब जगह से उन्होंने फ़ोन करके सहयोग की मांग की, लेकिन कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो भारत का अंदरूनी मामला है, उस भारत के अंदरूनी मामले में क्यों कर कोई देश हस्तक्षेप करे। और इसीलिए आज उनकी यह भी एक चाल थी कि सार्क जो स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस है, सार्क स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से इस बात को उठाकर एक स्थिति बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन वो उर्दू में बोल रहे थे। भाई साहब, कोई उर्दू समझने वाला नहीं था वहाँ। सार्क के सारे देश उर्दू नहीं जानते, मालदीव के लोग तो उर्दू जानते भी नहीं।
तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस बार गहरी मुंह की खानी पड़ी है। एक बार फिर मल्टीलेटरल जो मंच था जिसमें कि कई देशों के लोग शामिल होते हैं, उसमें एक पॉजिटिव एजेंडे पर चर्चा होनी थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे। और बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से पाकिस्तान के हाथ निराशा ही लगी है और एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर भारत की हुई है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। भारत को ये कूटनीतिक जीत मालदीव में चल रहे चौथे एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन में मिली है। दरअसल पाकिस्तान ने सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। सम्मेलन में मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का हवाला देकर कश्मीर का मुद्दा उठाने ही नहीं दिया। दरअसल राज्यसभा के स्पीकर वहां पर मौजूद थे। राज्यसभा में सम्मेलन में मौजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का हवाला दिया, मुद्दा उठाने नहीं दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने यहां पर कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 370 से जुड़ा हुआ मामला भारत का आंतरिक मामला है। लेकिन वहां पर क्या कुछ हुआ इस सम्मेलन के दौरान, किस तरह से पाकिस्तान को पटकनी खानी पड़ी है, मुंह की खानी पड़ी है और किस तरह से करारा जवाब यहां पर भारत ने पाकिस्तान को दिया, आपको फिर से सुनवाते हैं। कश्मीरियों की हालत इज़्ज़ार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को जारियत और तशद्दुद का निशाना बनने वाले The Deputy Speaker, point of order, please. Please, just 1 minute, Deputy Just 1 Speaker. minute, please. There is a Point of point of order. order. There's a point of order. Let's listen to the point Just of order. hold on 1 minute. Just Okay, 1 minute. one speaker after the other. The Indian speaker has asked for a point of order, and I am going to allow a point of order for the Indian speaker. Thank you, Your Excellency. This point of order relates to the statement given by here. Excellency, we strongly object to the raising of internal matter of India in this forum. We also reject the politicization of this forum by raising issues which are extraneous to the theme of this summit. There is need for Pakistan to end cross-border terrorism and all kinds of state support to the same in the interest of regional peace and stability. Excellencies, terrorism is the biggest threat for entire humanity and the world today. Therefore, unanimously we should not allow in this August gathering any kind of written view to become part of the proceeding. Again, sir, Excellency Speaker Mohammad Nasir Sahab, Maldiv Majlis, and Excellency and Secretary General IPU, Mr. Martin, yours repeatedly and categorical statement that this forum or summit is only meant to discuss SDG. This should not be the part of proceedings, sir. I strongly object to be deleted this part. Thank you, Excellency. The country which indulges itself in a genocide of its own country, which became a separate country, has moral right to raise this issue here. Absolutely. Let me I'm clarify, sir. sorry. No one has the right to. Pakistan is not a purveyor of terror. Jammu and Pakistan Kashmir, is a which is victim part of terror. of India, I which is absolutely part object of to India, this. How compromised. is he saying that we are Two purveyors of areas, terror? the Please, so-called please, Azad please, Jammu and not Kashmir. please, there is a chair to this meeting. You cannot allow him to say this. GB, which Please. Pakistan No. had illegally occupied through armed action in Pakistan is 1947. not a purveyor of Pakistan terror. has kept the people of this How region dare guessing on someone their says Pakistan is a status purveyor of as a terror? We constitutional have lost entity, the more people in so-called this war AJK against is terror than unique. anyone It else. has been given the trappings of a country with a president, a prime minister, and a legislative of its own, but the so-called AKJ is neither a country Please, nor a please, province. Mr. The Chair. Karachi Agreement of I'm sorry. India, please stick to your point of order without going to the substance of the matter. You are being allowed to talk about our internal Please. matters. Strategically No. important for its connectivity This is with not China. okay. Deputy This is not okay. This meeting is for SDG only, sir. Nothing Yes, to do with SDGs, otherwise. human rights. अखिलेश जी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है भारत के लिए और साफ शब्दों में भारत ने ये बता दिया है पाकिस्तान को कि भारत का आंतरिक मामला है कश्मीर और इस पर कुछ भी बोलने का अधिकार पाकिस्तान को नहीं है। तो वहीं इस मुद्दे पर भारत को मालदीव का भी साथ यहां पर मिल गया है। मालदीव संसद के स्पीकर ने भारत को भरोसा दिया है कि कश्मीर पर दिए गए सभी बयानों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा अगर भारत ऐसा चाहता है। तो एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को साथ मिला है, मालदीव का साथ मिला है इस बार। निश्चित तौर पे मालदीव का ही नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के
जो सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर मार्टिन, उनका भी सहयोग मिला है। और दरअसल जो मुझे जो पता चल रहा है सूत्रों से, उसके मुताबिक ये है कि भारत ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। जो मालदीव के मजलिस के स्पीकर है मिस्टर नासिद और इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर मार्टिन, उनको पहले ही भारत ने अलर्ट कर दिया था कि हो सकता है पाकिस्तान इस पूरे कॉन्फ्रेंस को डिरेल करने की कोशिश करे, और डिरेल करने की कोशिश करेंगे वो कश्मीर के नाम पे, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा इतिहास रहा है कि सार्क के मंच का, सार्क के अलावा जितने भी मंच उनको जब भी मिले, उन सारे मंचों का दुरुपयोग उन्होंने इसी रूप में किया है कि कश्मीर के मामले को उठाकर। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि सार्क का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2016 के बाद से ही, 2016 से ही दरअसल 2015 के बाद कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ, वो लगातार नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान का एक जो कश्मीर रोग है और पाकिस्तान का एक जो आतंकवाद का रोग है, उन दोनों रोगों की वजह से जो सार्क शिखर सम्मेलन होता था, सार्क शिखर सम्मेलन के माध्यम से जो दक्षिण के देश हैं उन देशों में विकास और शांति और सहयोग की बातें होती थी, वो पूरी तरह रुका हुआ है। और कश्मीर के मुद्दे पर एक बार फिर से बड़ी जीत यहां पर भारत की हुई है, तो वहीं पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन इससे क्या सबक लेता है पाकिस्तान, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। तो मालदीव की संसद में पाकिस्तान की तरफ से जब कश्मीर का मुद्दा उठाया गया तो उसे बोलने का मौका नहीं मिला, बल्कि भारत ने करारा जवाब यहां पर दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।